Congrats, my dear friends who are qualified in SSC CGL Tier 1. సౌత్ వాళ్ళు మన వాళ్ళు జాబ్ సిజిఎల్ జాబ్స్ కొట్టాలనే ఉద్దేశంతో జనరల్గా నార్త్ వాళ్ళకి సిజిఎల్ జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. కానీ సౌత్ వాళ్ళు కూడా సిజిఎల్ జాబ్స్ ఎక్కువ రావాలనే ఉద్దేశంతో సిజిఎల్ టైర్ 2 కోచింగ్ కంప్లీట్ గా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను. అయితే మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైతే సిజిఎల్ టైర్ 1 క్వాలిఫై అయ్యారో మీ నేము, మీ హాల్ టికెట్ నెంబరు, ఫోటోగ్రాఫ్, హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీ సెలక్షన్ లిస్ట్ ఉన్నది, దాన్ని హైలైట్ చేసి మీరు ఈ నెంబర్స్ కి ఏదో ఒక నెంబర్ కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. వితిన్ 3 to 4 days లో మీకు ఫ్రీగా కోర్స్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. జనరల్ నా బర్త్డే సందర్భంగా కొన్ని ఆఫర్స్ జరిగింది. 1 month, 3 months, 6 months, 1 year మీద. అయితే 1 month, 12 months మీద ఆఫర్స్ అయిపోయినాయండి. అది 3 months, 6 months 16వ తారీఖు వరకు పొడిగిస్తున్నాను. అంటే 3 months కోర్సు 799, ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా 3 months 799, 6 months 1799. మీకు కావాల్సిన కోర్స్ తీసుకుని విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ మీ విఎంఆర్. థ్యాంక్ యూ. Hi friends, welcome to VMR Logics. In this video, we'll learn directions. Decide. Directions. Let me change the color, it's so dull. चलिए हिंदी में इसे दिशाएं कहते हैं. This topic is very simple with the simple shortcuts. And from this topic, we are expecting minimum 2 questions. Sometimes he may give more than 2 also, means around 3 questions he can go. But we cannot expect some 4 or 5 questions. So we can expect minimum 2 questions. And you know very well that each question makes a lot of difference in the examination. So now let's start directions. So directions के क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, किस तरह से इन सिंपल शॉर्टकट्स में वी हैव टू सॉल्व. बिफोर दैट पहले तो ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर ये दिशाएं कितने होते हैं और इसे कैसे समझा जा सकते हैं. आई नो दैट आई एम नॉट टीचिंग किड्स, बट फिर भी देखिएगा. प्लीज ड्रॉ दिस पिक्चर. This point is called center point or Kendra Bindu. This is east. This is west. This is north. And friends, this is south. You have to work out questions based on this particular directions. इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे भी जानेंगे. Dear friends, as you know that these are called Purab, Purab, East, Purab. उसके बिल्कुल अपोजिट में वेस्ट यानी पश्चिम, यानी पश्चिम. नॉर्थ यानी उत्तर और साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण. So these are the main 4 directions: east, west, north and south. But friends, we have corners जैसे कि north east, north west, south east, south west. These are called in Hindi उप दिशाएं. तो जो 2 दिशाओं के बीच में आता है, कॉर्नर में आता है. जैसे कि दोस्तों यहां देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीच. सो दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट इन इंग्लिश. दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट. एंड इन हिंदी वी कॉल इट इज उत्तर पूर्व. वी कॉल इट इज उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व. And the corner between east and south is called southeast. That means this part is southeast, southeast यानी दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व. Then the corner between west and north is called northwest. This is northwest यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम.
and the corner between south and west is called southwest. Southwest. चलिए इसे हिंदी में हो गया तो now let me write in English also. This is northeast, northwest. This is northwest. So friends, each तो already we have done. So now let me just give you, this is northwest यानी उत्तर पश्चिम. ठीक है ना, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. और ए साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम. ठीक है ना. तो दोस्तों इस तरह से वी हैव टोटल 8 डिफरेंट directions. 4 are the main directions: east, west, north, south, and 4 are the corners: northeast, northwest, southeast, southwest. हिंदी में देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. फिर उत्तर और पूरब के बीच जो कॉर्नर है, उप दिशा जो है, दैट इज कॉल्ड उत्तर पूर्व. और दक्षिण और पूरब के बीच द कॉर्नर जो है उसे कहेंगे दक्षिण पूर्व. और साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला जो उपदिशा है दैट इज दक्षिण पश्चिम. और उत्तर और पश्चिम के बीच वाला जो कॉर्नर होता है दैट इज उत्तर पश्चिम. सो फ्रेंड्स, दिस इज सिंपल टर्मिनोलॉजी ऑन डायरेक्शंस. ये टर्मिनोलॉजी को आप याद रख लीजिएगा और इससे बेस करके वी वर्क आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है ना. तो नाउ इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक आदमी, एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर दिशा की तरफ चलता रहता है, फिर वो मोड़ लेता है, यानी he takes a right turn, he takes a left turn, he takes some right turn and then left turn. यानी especially we have only 2 turns, 2 तरह की मोड़, या तो वो दाएं की तरफ यानी राइट या बाएं की तरफ यानी लेफ्ट, या तो राइट टर्न लेगा या तो लेफ्ट टर्न लेगा. फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए दोस्तों, इस पिक्चर के आधार पर, बेस्ड ऑन दिस पिक्चर, आई एम लुकिंग एट विच डायरेक्शन. मैं इस तरह से खड़ी हूं, मैं इस तरफ देख रही हूं, तो बताइए मैं किस तरफ देख रही हूं. एब्सोल्युटली आई एम फेसिंग द ईस्ट. आई एम फेसिंग द ईस्ट. अब देखिएगा, ये मेरा दाया हाथ है, दिस इज माई राइट हैंड. अगर मैं ईस्ट की तरफ मैं मुड़ी हूं, ईस्ट की तरफ मैं देख रही हूं, और यहां से मैं दाएं की तरफ अगर मैं मुड़ती हूं, इफ आई टेक ए राइट टर्न, ओके, इफ आई टेक ए राइट टर्न, नाउ बताइएगा आई एम फेसिंग नाउ विच डायरेक्शन. बिल्कुल सही, नाउ आई एम फेसिंग द साउथ यानी दक्षिण की तरफ. अब देखिएगा, मैं दक्षिण की तरफ देख रही हूं और दक्षिण से अगर मैं बाएं की तरफ यानी टुवर्ड्स माय लेफ्ट, यानी इफ आई टेक ए लेफ्ट टर्न, if I take a left turn, so once again where I am facing now, which direction I am facing now, I am facing now the east, यानी पूरब की तरफ मैं खड़ी हुई हूं, मुंह करके, मतलब facing the east I am standing. यानी सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी होता है, अगर कोई व्यक्ति एक डायरेक्शन से जा रहा है, अगर वहां से कोई वो राइट टर्न लेगा तो वो किस तरफ जाएगा, अगर वहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो वो किस तरह जाएगा. तो देखिए दोस्तों, यहां पर जब वो सिर्फ मोड़ लेता है, वी हैव टू गिव ओनली अबाउट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. वी विल नॉट टॉक अबाउट द कॉर्नर्स. वी डोंट टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट. प्लीज रिमेंबर, आप हमेशा इसे ध्यान में रखिएगा. अगर कोई व्यक्ति किसी एक दिशा की तरफ चलता रहता है, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, तो सिर्फ अपन या पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण के बारे में ही कहेंगे. कभी वी विल नॉट टॉक अबाउट, यानी कभी अपन ये जो उप दिशाएं हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, यानी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, इस तरह की जो उप दिशाएं हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे. सिर्फ वी विल टॉक अबाउट ओनली पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण. ठीक है ना. तो आप चलिए, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूं. अगर कोई व्यक्ति
फेस ईस्ट के तरफ है और ईस्ट से वो राइट टर्न लेता है, तो अब वो किस तरफ मूव करके खड़ा है, या उन्होंने लेफ्ट लेता है यानी बाएं की तरफ मुड़ता है, तो अब वो कौन सी दिशा की तरफ देख रहा है. सो लेट्स गिव a simple information. Let's have a simple discussion on this simple information. ठीक है, तो चलिए. So now friends, please remember, when a person is facing the east, when a person is facing the east, from east, if he takes a right turn, where does he face now? If he takes a left turn, where does he face now? So this is something that we need to understand very clearly. तो चलिए दोस्तों, let's look at this. If a person is facing the east, अगर ईस्ट से वो राइट टर्न लेता है, now he is facing the south. He is facing the south. If he takes a left turn, he is facing the north. He is facing the north. ठीक है ना. तो दोस्तों देखिए, मैं हिंदी में भी लिख रही हूं. अगर कोई व्यक्ति पूरब की तरफ फेस करके खड़ा है और वहां से उन्होंने राइट टर्न यानी दाएं की तरफ मुड़ता है, देन वो अभी देखेगा दक्षिण, यानी नाउ ही इज फेसिंग दक्षिण. अगर वो बाएं की तरफ मुड़ता है, सो दोस्तों अब वो उत्तर की तरफ देख रहा है, तो वो अब उत्तर की तरफ देख रहा है. ठीक है ना. सो व्हेन अ पर्सन इज फेसिंग द ईस्ट, फ्रॉम ईस्ट इफ ही टेक्स ए राइट टर्न, he will face now south. If he takes a left turn, he will face now north. ठीक है ना. तो this is information. अब इसी तरह से पूरे 4 दिशाओं के बारे में बात करेंगे. ईस्ट इज कंप्लीटेड. नाउ लेट्स लुक एट वेस्ट. बस सबसे पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूं, अगर आपने ईस्ट के डायरेक्शंस बाहर कर लिए हैं, तो वेस्ट के डायरेक्शन बाहर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट आर ऑपोजिट. तो दोस्तों व्हेन ईस्ट एंड वेस्ट आर ऑपोजिट, तो सिंपली आपको इतना सोचना चाहिए, जो ईस्ट के डायरेक्शंस है वो वेस्ट में ऑपोजिट हो जाएगा. यानी अब देखिएगा, आप ही देखिएगा, अब वेस्ट राइट विल बिकम व्हाट, वेस्ट लेफ्ट विल बिकम व्हाट. आप सिर्फ ईस्ट की तरफ के डायरेक्शन से ऑपोजिट लेने से मिल जाएगा. जैसे कि अब देखिएगा दोस्तों, ईस्ट राइट इज साउथ, है ना. तो ये साउथ का ऑपोजिट क्या होगा, नॉर्थ. यानी वेस्ट राइट विल बी नाउ नॉर्थ. वेस्ट राइट विल बी व्हाट नाउ, नॉर्थ. उसी तरह से ईस्ट का लेफ्ट जो है नॉर्थ है, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, यानी वेस्ट लेफ्ट विल बी नाउ साउथ. वेस्ट लेफ्ट विल बी नाउ साउथ. तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू हैव गॉट द लॉजिक हियर. तो बस आप ईस्ट के डायरेक्शंस बाय हार्ट कर लीजिए. इवन इफ यू हैव गिवन वेस्ट के डायरेक्शंस बताने के लिए भी अगर वो पूछता है, तो जो ईस्ट के आंसर में जो भी आपको मिलता है, उसे ऑपोजिट करने से, उसके ऑपोजिट लेने से वेस्ट का डायरेक्शन मिल जाएगा. ठीक है ना. सो अभी देखेंगे, अब पश्चिम, यानी अब थोड़ा हिंदी में भी पढ़ लेंगे. पश्चिम, कोई भी व्यक्ति अब पश्चिम के तरफ देख रहा है और वहां से या तो वो दाएं मुड़ेगा या तो वो बाएं मुड़ेगा, है ना. तो वो दाएं मुड़ने से, बाएं मुड़ने से अब वो कौन सी दिशा की तरफ देख रहा है, ये जानने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, जो पूरब के आंसर है उसके ऑपोजिट हो जाएगा. यानी अब देखिएगा, पूरब के दाएं है दक्षिण, तो दक्षिण का ऑपोजिट है उत्तर, यानी अब पश्चिम का दाया होगा उत्तर. पश्चिम का दाया होगा, दाएं की तरफ होगा उत्तर दिशा, और पश्चिम के बाएं जो होगा अब दक्षिण दिशा. ठीक है ना दोस्तों. तो बस आप ईस्ट अगर आपने बाय हार्ट कर लिया, तो वेस्ट का ऑटोमेटिकली यू हैव लर्न्ड इट.
अब चलिए, नाउ द सेम वे आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन ऑन नॉर्थ। नॉर्थ का इंफॉर्मेशन देने के बाद जो नॉर्थ के डायरेक्शंस होगा, अगर वही आप साउथ से लोगे तो जो नॉर्थ की डायरेक्शंस है वो ऑपोजिट होगा। एनी हाउ, लेट्स लुक एट दैम नाउ। प्लीज लुक एट दिस। फ्रॉम द नॉर्थ, right turn leads to which direction? Left turn leads to which direction? Let's look at this one. So friends, please look at this. North right is east. North right is east. North left is west. North left is west. North right is east. North left is west. यानी उत्तर दिशा से दाएं मुड़ने पर we will face now पूरब। उत्तर दिशा से बाएं मुड़ने से now we will face पश्चिम। So जो नॉर्थ के डायरेक्शंस है उनके पूरे विपरीत यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे आपको दक्षिण के दाएं और दक्षिण के बाएं। सो नाउ फ्रेंड्स, चलिए अब उसके बारे में भी देखेंगे। नाउ साउथ, अब सोचिएगा साउथ, फ्रॉम द साउथ राइट, फ्रॉम द साउथ लेफ्ट, from the south right and from the south left. Now please look at this. North right is east. Now south right should be opposite to the northeast. Yeah, sorry, north right. So north का right अगर east है तो east का opposite west. यानी south right is west, south left is east. South left is east. तो दोस्तों समझ गए हो ना आपने? तो चलिए एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो दक्षिण है, दक्षिण के जो दाएं और बाएं होंगे वो उत्तर के दाएं और बाएं से विपरीत यानी ऑपोजिट होंगे। तो उत्तर का दाएं जो पूरब है, अब दक्षिण का दाएं तरफ मुड़ने से पूरब का जो विपरीत दिशा है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है वो पश्चिम है। यानी दोस्तों अगर आप दक्षिण दिशा से दाएं मुड़ेंगे तो अब आप पश्चिम दिशा के ओर चलेंगे। पश्चिम दिशा के ओर चलेंगे। और उसी तरह से बाएं की तरफ यानी दक्षिण दिशा से बाएं की तरफ मुड़ेंगे तो दोस्तों अभी आप पूरब की ओर चलोगे। पूरब के ओर चलोगे यानी अब दिशा होगा पूरब। So this is how you now understood the directions of east, west, north, south when we take a right turn, left turn. अब बिल्कुल पीछे की तरफ देखेगा तो पीछे की तरफ मुड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों? उनके बिल्कुल विपरीत। समझे कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा से उत्तर की ओर चल रहा है एंड सडनली ही टुक ए बैक टर्न और वो बिल्कुल पीछे मुड़ा है। तो उत्तर से पीछे मुड़ा है यानी उत्तर का जो विपरीत दिशा है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है दैट इज दक्षिण। यानी अब वो कौन सी तरफ जाएगा? दक्षिण के। ठीक है ना दोस्तों? अब चलिए अभी जो पूरा वी हैव टेकन इन दिस वे एक छोटी सी टेबल में आपको दे देती हूं, आप उस टेबल को याद रख लीजिएगा तो आप आराम से यू कैन बाय हार्ट। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए मैं ईस्ट का देती हूं और उसके बाद नॉर्थ का देती हूं और वेस्ट और साउथ का जो है ईस्ट और नॉर्थ का, ईस्ट का ऑपोजिट होगा वेस्ट, नॉर्थ का ऑपोजिट होगा साउथ। तो दोस्तों प्लीज लुक एट दिस। एक छोटी सी टेबल पर आपको पूरे लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है ना? आप प्लीज लुक एट दिस वन। ईस्ट से राइट एंड लेफ्ट और नॉर्थ से भी राइट एंड लेफ्ट। नाउ ईस्ट राइट, ईस्ट लेफ्ट, उसी तरह से आप समझिएगा नॉर्थ राइट और नॉर्थ लेफ्ट। क्योंकि मैं ईस्ट और वेस्ट साथ में लिखना नहीं चाहती हूं क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि अगर उस तरह से लिखने से
कंफ्यूज होने की बहुत सारी संभावना है। नाउ प्लीज लुक एट दिस, ईस्ट राइट इज साउथ, ईस्ट राइट इज साउथ, ईस्ट लेफ्ट इज नॉर्थ, ईस्ट लेफ्ट इज नॉर्थ, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, नॉर्थ राइट, नॉर्थ राइट इज ईस्ट, नॉर्थ लेफ्ट इज वेस्ट। बस आप सिर्फ एक छोटी सी टेबल याद रख लीजिएगा। अगर वो वेस्ट को पूछता है, जो ईस्ट का राइट, ईस्ट का लेफ्ट जो है उसके ऑपोजिट होंगे वेस्ट का राइट और वेस्ट का लेफ्ट। उसी तरह से नॉर्थ का राइट और नॉर्थ का ईस्ट डायरेक्शंस जो भी आएंगे वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा साउथ राइट और साउथ लेफ्ट में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, नाउ लेट्स लुक एट सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब ये इस लॉजिक पर बेस करके एक 2 डिफरेंट मॉडल्स के बारे में अब पता करेंगे एंड देन वी विल सी सम सिंपल शॉर्टकट्स। और वो शॉर्टकट्स देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्वेश्चन अगर आ गया इस लॉजिक से तो मैं तो बस बिना पेन यूज किए आई कैन गिव द आंसर। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, और वो क्वेश्चंस आएगा भी। तो चलिएगा मॉडल नंबर 1 पर, मॉडल नंबर 1 पर। फ्रेंड्स हियर तो मैं पूरी क्वेश्चंस स्टेटमेंट के साथ नहीं लिखना चाहती हूं, मैं बस बताती जाती हूं और आप उसे बिल्कुल वैसे समझिएगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति पूरब की तरफ चल रहा है, a person is walking towards east. So after covering some distance, मैं यहां पर कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है आई एम नॉट गिविंग, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये बिना दिए ही क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं भी बिल्कुल उसी मॉडल में कर रही हूं। So a person is walking towards east, after covering certain distance he took a right turn, then after going little further he took a left turn, he took a left turn, then he took 2 consecutive right turns, he took 2 consecutive right turns, then he took 1 left turn. Now finally the man is walking in which direction? Now finally the man is walking in which direction? So देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर चल रहा है। पहले उन्होंने दाएं मुड़े, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, यानी कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने दाएं मुड़े हैं, फिर उसके बाद दाएं मुड़े हैं, फिर 2 बार दाएं मुड़े हैं और फाइनली आखिरी में उन्होंने बाएं मुड़े हैं। तो अब वो किस दिशा के ओर चल रहा है? अब वो किस दिशा के ओर चल रहा है? नाउ ही इज वॉकिंग इन विच डायरेक्शन? तो चलिए लेट्स वर्क आउट, ठीक है ना। आपको तो पूरे दाएं बाएं तो याद है ना, राइट एंड लेफ्ट यू रिमेंबर प्रीटी वेल। नाउ लेट्स लुक एट दिस। नाउ ईस्ट राइट, तो पूरब के ओर चल रहा था तो वो पहला मोड़ लिया है दाएं, यानी फर्स्ट टर्न ही टुक टुवर्ड्स हिज राइट, राइट टर्न ही टुक। नाउ ईस्ट राइट इज व्हाट दोस्तों? साउथ। ईस्ट राइट इज व्हाट? साउथ, यानी पूरब से उन्होंने दाएं मुड़े हैं। अब वो किस दिशा के ओर चल रहा है? दक्षिण दिशा के ओर, दक्षिण दिशा के ओर चल रहा है। अब यहां पर, यानी अब जो दक्षिण दिशा के ओर चल रहा है, नाउ द पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, राइट। फ्रॉम हियर आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस ही टुक ए लेफ्ट टर्न, यानी साउथ यानी दक्षिण दिशा के ओर जो आदमी चल रहा था, कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने बाएं की तरफ मुड़ा है, यानी he took a left turn from the south direction. Now south left is what दोस्तों? South left is east. South left is east, यानी पूरब, पूरब। So now the person is walking towards east. अब वो व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है। कुछ दूर चलने के बाद he took a right turn. After covering certain distance, he took a right turn. यानी पूरब की ओर कुछ दूर चलने के बाद वो फिर से दाएं की तरफ मुड़ा है। Now
ईस्ट राइट इज व्हाट डियर फ्रेंड्स? इट इज साउथ अगेन. ईस्ट राइट इज साउथ, यानी फिर से वो दक्षिण की ओर चलने लगा, फिर से वो दक्षिण के ओर चलने लगा. ओके, नाउ आफ्टर वॉकिंग सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के बाद, फ्रॉम हियर ही टुक अनदर राइट टर्न, यानी जो दक्षिण की दिशा के ओर चल रहा था, कुछ दूर चलने के बाद वो फिर से दाएं मुड़े थे. अगेन ही टुक ए राइट टर्न. नाउ साउथ राइट इज वेस्ट, साउथ राइट इज वेस्ट, यानी दक्षिण दिशा से दाएं की तरफ जाने से अब वो कौन सी दिशा के वो चल पड़ रहा है? पश्चिम, पश्चिम की दिशा. ठीक है ना, पश्चिम दिशा. अब यहां से कुछ दूर चलने के बाद ही टुक ए लेफ्ट टर्न. फ्रॉम हियर आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस ही टुक ए लेफ्ट टर्न, यानी फ्रॉम वेस्ट ही टुक ए लेफ्ट टर्न. वेस्ट लेफ्ट इज साउथ अगेन. पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है. पश्चिम से उन्होंने बाएं की तरफ मुड़ा है. सो बाएं की तरफ मुड़ने से माय डियर फ्रेंड्स अब फिर से वो दक्षिण की दिशा के ओर जाएगा, यानी साउथ डायरेक्शन. फाइनली the man is walking in which direction? Finally the man is walking in the south direction. है ना, बहुत ही इजी. ईस्ट से राइट साउथ, साउथ से लेफ्ट ईस्ट, ईस्ट से फिर से राइट यानी साउथ, साउथ से राइट यानी वेस्ट, वेस्ट से लेफ्ट यानी साउथ. है ना. लेकिन आई प्रॉमिस्ड यू, बिना क्वेश्चन पेपर पे पेन यूज करके किए बिना ही वी कैन गेट द आंसर. तो अभी आपने मेरी बात तो याद रख ली होंगे. सो डेफिनेटली यू आर आर्ग्यूइंग विथ मी, मैम ये पूरा तो हमने किया है, दिस एवरीथिंग वी हैव डन इट, सो हाउ कैन यू से दैट विदाउट यूजिंग द पेन वी कैन वर्क आउट द क्वेश्चन? अभी बताएंगे ना वो सिंपल शॉर्टकट, जो सिंपल ट्रिक है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ. चलिए कैसे करते हैं, कैसे करते हैं. हाँ, हमेशा याद रख लीजिएगा, इनिशियल डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. इनिशियल डायरेक्शन, तो वो इनिशियली किस तरफ जा रहा था? ईस्ट की तरफ जा रहा था, है ना. किस तरफ जा रहा था? ईस्ट की तरफ जा रहा था. तो दैट यू नो दैट ऑलरेडी मैंने यहां पर दे दिया है, ईस्ट. ठीक है ना. अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी लॉजिक से कितने आराम से कर देते हैं, लेकिन पहले मैं लिखने दीजिए क्योंकि आई हैव टू वर्क आउट फॉर यू. पहले वो राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर फाइनली लेफ्ट टर्न. है ना. आर फॉर राइट, एल फॉर लेफ्ट, यानी राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. तो क्या करना है दोस्तों आपको? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यू कीप दिस इन योर माइंड. ईस्ट अपने माइंड में रख लीजिए, वो इनिशियल डायरेक्शन है. एक राइट और एक लेफ्ट को आप कैंसिल कर दीजिए. whenever you have right and left, cancel one right, one left. whenever you have right and left, जो opposite है right and left, आप कैंसिल करिए. तो यहां पर एक राइट है, यहां पर एक लेफ्ट है, आपने कैंसिल कर दिया. यहां पर एक राइट है, फिर वहां बाद में इमीडिएटली राइट है, उसे आप छूना नहीं. लेफ्ट जहां भी है आप उसे आप कैंसिल कर दीजिए. इसकी ये जरूरत नहीं कि राइट के बाद लेफ्ट आने से ही कैंसिल करना है, राइट के बाद लेफ्ट आने से ही कैंसिल करना, ऐसा कोई जरूरत नहीं. जहां पर भी राइट है और जहां पर भी लेफ्ट है, एक राइट को एक लेफ्ट को आप कैंसिल करते जाइएगा. एक दाया और एक बाया जब भी मिलता है, आप दाएं और बाएं को कैंसिल करते जाइए. तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया. अब मिलता है सिर्फ एक राइट. अब क्या बचा है दोस्तों? सिर्फ एक राइट बचा है. तो बस आप ये एक टर्न के बारे में सोचिए तो बस है. यानी आपका इनिशियल डायरेक्शन इज व्हाट? ईस्ट. आपका इनिशियल डायरेक्शन क्या था?
ईस्ट। बस आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ईस्ट राइट क्या है ये सोच लीजिए, बस है आपके आंसर आ गया है। ईस्ट का राइट यानी पूरब का दाया, पूरब के दाएं की तरफ कौन से ओर, दक्षिण के ओर यानी साउथ। दैट्स इट। तो आपने इतने बड़ा क्वेश्चन करने के बाद व्हाट वाज आवर फाइनल आंसर, साउथ। इतने शॉर्टकट में व्हाट इज आवर आंसर, साउथ। है ना मजे की बात। बस राइट लेफ्ट जितने भी मिलते हैं आप उसे कैंसिल करते जाइएगा, बिल्कुल। लेकिन अब आप ये पूछोगे मैडम एक राइट मिला है, ठीक है, अगर वो पूरब की तरफ जा रहा है, पूरब से दाएं के तरफ अब जाएगा, ओके, ओनली वन राइट। नाउ द पर्सन इज वॉकिंग इन द ईस्ट, अगर एक लेफ्ट मिला है, सो फ्रॉम द ईस्ट ही टेक्स ओनली वन लेफ्ट। ठीक है। अब आप ये बताइए मैम अगर दो राइट्स बचे हैं तो क्या करना चाहिए, दो लेफ्ट बचे हैं तो क्या करना चाहिए, तीन राइट्स बचे हैं तब क्या करना चाहिए, तीन लेफ्ट बचे हैं तब क्या करना चाहिए, चार राइट बचे हैं या चार लेफ्ट बचे हैं, या कभी कभी राइट लेफ्ट कैंसिल करने से कुछ नहीं बचा है, सिर्फ जीरो, तब क्या करना चाहिए, बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑलवेज कीप इन द माइंड आपका इनिशियल डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इनिशियल डायरेक्शन ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, साउथ हो सकता है ना। आप देखिएगा ओनली वन राइट यानी ईस्ट राइट या वेस्ट राइट या साउथ राइट या नॉर्थ राइट, या वन लेफ्ट यानी ईस्ट लेफ्ट या नॉर्थ लेफ्ट या वेस्ट लेफ्ट या साउथ लेफ्ट, जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन व्हेन यू गेट टू राइट्स या टू लेफ्ट्स, थ्री राइट्स या थ्री लेफ्ट्स, फोर राइट्स या फोर लेफ्ट्स या जीरो, तब क्या करना चाहिए अभी बता देंगे दोस्तों। नाउ प्लीज लुक एट दिस, if you are left with two right turns, you are left with two right turns, पूरा कैंसिल करने के बाद राइट लेफ्ट कैंसिल करने के बाद टू राइट्स बचे हैं। सो व्हेन यू गेट टू राइट्स देन टेक डायरेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन to the initial direction, opposite direction to the initial direction। यानी फ्रेंड्स उनका इनिशियल डायरेक्शन था ईस्ट, एक व्यक्ति का इनिशियल डायरेक्शन था ईस्ट, उन्होंने कुछ राइट्स कुछ लेफ्ट्स लिए हैं, एज पर आवर शॉर्टकट राइट और लेफ्ट कैंसिल करने के बाद दो राइट्स बचे हैं, तो उनका इनिशियल डायरेक्शन क्या था, ईस्ट था। दो राइट्स बचने से क्या करना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल डायरेक्शन, यानी इनिशियल डायरेक्शन इज ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, वेस्ट, यानी अब वो किस दिशा के ओर चल रहा है, पश्चिम दिशा के ओर चल रहा है। नाउ द पर्सन इज वॉकिंग इन विच डायरेक्शन, ही इज वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। सो दोस्तों दो राइट्स बचे हैं, उसका इनिशियल डायरेक्शन जो भी होगा उसका ऑपोजिट लीजिए। इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ है तो नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, इनिशियल डायरेक्शन वेस्ट है तो वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट, इनिशियल डायरेक्शन साउथ है तो साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ, इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर दो लेफ्ट्स बचे हैं तब क्या करना चाहिए, ठीक है, अब उसके बारे में सोचेंगे। दो लेफ्ट बचे हैं, आफ्टर कैंसलेशन ऑफ राइट लेफ्ट, नाउ वी हैव लेफ्ट विथ ओनली टू लेफ्ट टर्न्स, दाएं और बाएं कैंसिल करने के बाद अब बचे हैं दो बाएं मोड, टू लेफ्ट टर्न्स। तो टू लेफ्ट टर्न्स का भी बिल्कुल वही रूल है डियर फ्रेंड्स, ऑपोजिट डायरेक्शन
to the initial direction. Opposite direction to the initial direction. समझिए कि एक व्यक्ति पूरब की तरफ जा रहा है, वहां से उन्होंने 2 बार लेफ्ट टर्न लिए है, 2 बार बाएं मुड़े हैं, तो अब वो पश्चिम की तरफ जाएगा। अगर वो व्यक्ति पूरब से 2 बाएं मोड़ लेता है तो पश्चिम की तरफ, अगर वो पूरब से 2 दाएं मोड़ भी लेता है तब भी वो पश्चिम की तरफ। 2 दाएं मोड़ या 2 बाएं मोड़ बिल्कुल इनिशियल डायरेक्शन के विपरीत दिशा यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। सो 2 राइट्स या 2 लेफ्ट्स जो भी है, समझ गए ना आप? अगर वो नॉर्थ जा रहा, नॉर्थ की ओर, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वो उत्तर की ओर जा रहा है, अब उत्तर की ओर जा रहा है, उन्होंने 2 बाएं मोड़ लिए हैं, 2 लेफ्ट टर्न ही टुक, 2 बाएं मोड़ वो लिए हैं, तब उत्तर का जो विपरीत दिशा है दक्षिण, तो वो अब वो दक्षिण की ओर चल रहा है। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। सो 2 राइट टर्न या 2 लेफ्ट टर्न्स will result exactly opposite direction to the initial direction. ठीक है ना? हाँ, मैं जानती हूं कुछ वर्ड्स को मैं या कुछ पॉइंट्स को मैं बार बार इसलिए आपको दोहरा रही हूं दोस्तों, ताकि कम से कम मैं अगर 4 बार दोहराती हूं तो 1 बार तो आपके माइंड में रिकॉर्ड हो जाएगा ना। चलिए अब नेक्स्ट वन, अगर 3 राइट टर्न्स मिल जाता है तब क्या करेगा? तो लेकिन हमेशा याद रख लीजिएगा, इनिशियल डायरेक्शन से ही आपको सोचना है, इनिशियल डायरेक्शन से ही आपको सोचना है दोस्तों। अब वो कितने राइट्स मिले हैं दोस्तों? समझिए कि 3 राइट्स आफ्टर कैंसलिंग राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, नाउ द पर्सन इज रिमेन विथ 3 राइट टर्न्स। दाएं बाएं कैंसिल करने के बाद अब उनके पास बचे हैं 3 दाएं मोड़, 3 राइट टर्न्स। अब ये 3 राइट टर्न्स को आप सिंपली 1 लेफ्ट टर्न में बदल डालिएगा। तो रिमेंबर, 3 राइट्स आर ऑलवेज इक्वल टू 1 लेफ्ट। है ना मजे की बात? अब देखिएगा, अब समझिए कि एक व्यक्ति उत्तर की दिशा के ओर जा रहा है, उत्तर दिशा के ओर जा रहा है, उन्होंने 3 बार दाएं मुड़े हैं। A person is walking towards the north and he turned thrice consecutively right. अब 3 बार उसे राइट टर्न लेने के बाद अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है? तो आप 3 राइट लेने की कोई जरूरत नहीं, 3 राइट्स इज इक्वल टू 1 लेफ्ट। सो उत्तर से सोचिए, थिंक फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ लेफ्ट इज वेस्ट, यानी 3 राइट टर्न्स लेने के बाद वो वेस्ट की तरफ ही देखेगा, वेस्ट की तरफ ही जाएगा, पश्चिम के ओर ही जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? सो 3 राइट्स इज इक्वल टू 1 लेफ्ट। अगर समझे दोस्तों उनके पास 3 बाएं मोड़ बचे हैं, 3 लेफ्ट टर्न्स, लेफ्ट 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 is equal to what? I know that you are very intelligent and you are right. It's 1 right turn. 1 right turn. 1 right turn. So 3 lefts is equal to 1 right. 3 lefts is equal to 1 right. So now friends, इतनी easy कहां सीखोगे आप? VM और लॉजिक्स में। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियल डायरेक्शन से ही देख लीजिएगा, इनिशियल डायरेक्शन से हमेशा इसे याद रख लीजिएगा। अगर वो 4 बार किसी एक डायरेक्शन पे मुड़ता है, 4 राइट टर्न्स, पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, तीसरा भी राइट और चौथा भी राइट, सिर्फ वो दाएं मुड़ रहा है, दाएं 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 4 बार। सो 4 राइट्स
is equal to initial direction. Initial direction. So 4 rights is equal to initial direction. अगर वो पूरब से 4 बार दाएं मुड़ता है, वो फिर से पूरब की ओर ही चलता जाएगा. From the east, if a person takes 4 right turns, now also he will be walking towards the east only. और same for left also. अगर वो पहला भी लेफ्ट लिया, दूसरा भी लेफ्ट लिया, तीसरा भी लेफ्ट लिया और चौथा भी लेफ्ट लिया. Now friends, again the person will go in the initial direction only. Again the person will go in the initial direction only. Yani 4 lefts is equal to initial direction. 4 lefts is equal to initial direction. Initial direction. अगर 0 मिल जाता तो, यानी राइट कैंसिल हुआ, लेफ्ट कैंसिल हुआ, राइट लेफ्ट, इस तरह से कैंसिल करते करते जाएंगे, तो अब फाइनली बचा है 0. ना कोई राइट मिला है, ना कोई लेफ्ट मिला है, पूरा कैंसिल हो गया, राइट कैंसिल हो गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो फाइनली 0 है. 0 इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल डायरेक्शन. इनिशियल डायरेक्शन. इनिशियल डायरेक्शन. अब आप प्लीज मुझे ये मत पूछिएगा मैडम अगर 5 राइट है तो 5 लेफ्ट है तो क्या करना चाहिए. देखिए दोस्तों, हर 4 मोड को you come back to the same direction. Every 4 turns, whether 4 right turns or 4 left turns, always give you the initial direction. ये आप जानते हैं. अगर वो 5 right turns लिया, वो 5 right turn में से 4 right turns को आप कैंसिल कर दीजिए ना, 4 right turns will become 0. तो अब फाइनली बचा है सिर्फ एक राइट टर्न. इस तरह से कर लीजिए ना. हाउ सिंपल. तो चलिएगा यहां पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस करने से यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल. ठीक है ना. चलिए कुछ क्वेश्चंस.